Today we are going to talk about healthy living along with your working schedule. See, what basically the factors जहाँ पे हम रुकते हैं एक healthy lifestyle की तरफ जाने के लिए. Sometimes body give you the signal that now we need to repump ourselves. But सोचते हैं माइंड में होता है हार्ट में होता है तब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. What are the certain reasons जहाँ पे हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं? Number one is always the busy lifestyle, office work schedule, 9 to 12 hours of shift, उसके बाद traveling, or if we are from work from home, then again the same situation. Unhealthy eating habits. If I'm staying away with the family, or both the partners or both the spouses are working, somewhere, somehow, we need to rely on the food packed preservatives. Lack of physical activity. जब तक ऑफिस खत्म होता है घर पहुंचते हैं बच्चों के एग्जाम्स फैमिली कमिटमेंट्स पेरेंट्स के मेडिकल कंसर्न एनर्जी लेवल जीरो हो ही नहीं पाता. लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर. 90% of us who are in the program right now, vitamin D deficiency, 90% of us, vitamin B12 deficiency, thyroid, maybe high BP, migraine, bad gut health issues, or liver concern issues, which are very common nowadays. The most arising situation that because of the office hours and the common washroom, nowadays we are holding our urine for a longer time to try to avoid using the washroom. So, पानी का इंटेक कम, किडनी प्रेशर ज़्यादा, urine bladder muscles are activated. That's why young age में urine inconsistency, stones का प्रॉब्लम, चाहे वो यूट्रिक हो, गॉल स्टोन हो, किडनी स्टोन्स हो, इसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. Thirdly, stress level, obviously, eye and brain muscles, cervical muscles are impacting directly. Unhealthy lifestyle, apart from weight, overweight, obesity छोड़ दीजिए, उसके अलावा सबसे मेजर इम्पैक्ट जो हिट मारता है that is the brain fog, muscular pain, psychological changes, irritation, mood swings, numerous of psychological challenges, and the hormone imbalance, which is the major one, is the thyroid and the cortisol, PCOS, PCOD. सब घूम के कहीं ना कहीं आपकी ऑफिस रेगुलरिटी पे इम्पैक्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें मालूम है पर करना क्या है उस पर बात करते हैं. Our body needs around 13 vitamins and 16 minerals as well as fat, food which we eat. Food we eat, exercise we adopt, the habit we adopt. The habit किसी भी बॉडी को सेलुलर चेंजेस में जाने के लिए मिनिमम 21 डेज लगते हैं. Kapil Sharma and lot of celebrities are impacting on 21 days challenges. Why? The concept is 21 days एक आदत को अडाप्ट करने में लगते. जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने अपने फोन पे एक छोटा सा प्रॉमिस किया कि आप रात को स्क्रीन टाइम कम करेंगे, 30 मिनट्स 1 आवर स्क्रीन टाइम कम करेंगे. जब तक वो सिग्नल बॉडी एंड ब्रेन को अडाप्ट होगा, इट टेक्स अराउंड 21 डेज आपकी स्लीप साइकिल को बैलेंस आउट करने.
एंड आपके ब्रेन को इस बात का एहसास कराने के लिए कि नाउ वी नीड टू स्टॉप इट. Now we come on the food. Everyone talk about carbs. Carbs are bad. Are you fully agree with this? Carbs somewhere somehow the only carb which is bad for us if we have it in a ample amount, जो हमारी डेली डाइट में हो ही जाता है. The only carb is मैदा. जब आप मार्केट में हैं, आप ऑफिस में हैं, कैफेटेरिया में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, कहीं भी हैं, इवन इफ यू आर इन अ मेट्रो स्टेशन, आप चारों तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि यार आज मैं मैदे वाली चीज साइडलाइन का कुछ और खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा पूरी मेट्रो के स्टेशन पे या आपके कैफेटेरिया में. जब आप उस चीज पे जाएंगे, बस हमें सिर्फ उस चीज को काउंटर पार्ट करके कंट्रोल करना है कि मुझे 21 दिन मैदे वाली चीजें, फॉर एग्जाम्पल जिसमें छुपा तेल, छुपा नमक, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इंडियन चाट पापड़ी, ब्रेड, बिस्किट, बेकरी नहीं खाना. I can fix one meal like Friday has a cheat meal जिस दिन मैंने उसको खाना है. Remember, आप आदत बनाएंगे, आप चेंजेस करेंगे तो आपको देख के घर में छोटे और बड़े, इवन आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, वो भी चेंजेस करेगा. Now, if you are more over the simple carbs, आलू, साबुदाना, they are like empty calories. एनर्जी देगा थोड़े टाइम के लिए, भूख भर जाएगी, बट 1 घंटे बाद फिर से भूख लग जाएगी. तो फोकस ऑन अ पर्टिकुलर 6 मील पैटर्न्स. खाना या पीना, 1 मील में खाना है, 1 मील में पीना. You are just burning and following a regular, rigorous, not rigorous, if I say आप अपनी डेली रूटीन की जो एक एक्सरसाइज पैटर्न है सिर्फ उसको पूरा कर रहे हो. बिकॉज लिफ्ट्स आप यूज करते हो, स्टेयर्स आप यूज नहीं करते, फिजिकल मूवमेंट साइकिलिंग नहीं है, घर का काम हम नहीं करते, मॉपिंग एंड ऑल. तो बॉडी की जो फिजिकल मोबिलिटी है उस चीज को पूरा करने के लिए आप जिम जा रहे हो. अब वो चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, पर आपने सिर्फ अपनी बॉडी को मोबिलाइज किया है उस ड्यूरिंग दैट पोस्ट. ठीक है. So at that time also your body just needs 0.8 gram per kg ideal body weight, which can be meet up in your regular dietary factor, whether you are a vegetarian, whether you are a non-vegetarian. You don't need to go for a high protein diet or a supplementation until and unless आपको जिम करते हुए 90 से 120 डेज ना हो जाए एंड आपको कुछ ऐसा ना हो कि आप बहुत ही हैवी डेडलिफ्ट या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं. नेवर एवर कट आउट योर फैट. जब आपने अपने बेकरी, कन्फेक्शनरी, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड ग्रुप को कंट्रोल कर लिया, जो आप डेली खाना खा रहे हो उसमें जो फैट जा रहा है, that is essential for your joints because we are already in a state of a low level of vitamin D and low level of vitamin B12. The body somewhere somehow need mobilization which is available in the fat soluble vitamins like A, D, E, K. So always use blend of oil. Blend of oil means सूखी सब्जियां सरसों के तेल में, दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी घी के तड़के में, एंड
avoid using vegetable based oil like सफोला. आप हमेशा ब्रांड देखते हो सफोला, लेकिन ब्रांड के पीछे जब आप वो पैकेट खरीदते हो ना, उसके एयर पफ के नीचे एक छोटा सा लिखा होता है उसका टाइप ऑफ ऑयल. टाइप ऑफ ऑयल मतलब इज इट अ सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, पीनट ऑयल और इट्स अ सोयाबीन ऑयल. So that is important. You need to see the blend of oil. Always opt a seed-based oil and keep on changing it in a monthly base. Suppose इस month आपने groundnut oil लिया, तो next month आपने sunflower oil लिया. Never use olive oil for cooking, because olive oil is meant for salad dressing, which does not require the exposure to the high flame gas. Because इंडियन कुकिंग में जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारी एक आदत है, जब तक हम तेल को खौला ना दें तब तक हमें वो मजा नहीं आता खाना बनाने में. द मोमेंट आप उसको वो उस लेवल पे ले जाओगे वो खत्म है. इट कन्वर्टेड इनटू rancid. Why we are talking about the magnesium for the bone health? Because every one of us, somewhere, somehow, once in 15 days, complain about bloating, gastric complex, acidity, and bad bowel syndrome. कहीं ना कहीं कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है. ये सब की सब चीजें हमारी मैग्नीशियम से लिंक है. एंड जहां मैग्नीशियम की बात आती है, जहां आपका पेट खराब, आपका दिमाग खराब, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का मैग्नीशियम लेवल गड़बड़ है. और वो होता है क्योंकि कैल्शियम एंड विटामिन डी दे वर्क एज 1:1 इन द टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो जहां विटामिन डी लो होगा, कैल्शियम भी लो होगा और मैग्नीशियम भी लो होगा. तो जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करके वापस आए हो, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, या आप शादी में गए हैं, 15-20 दिन कहीं बाहर थे, ऑफिशियल टूर से वापस आए हो, तब ट्राई टू ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइकनाइट has a supplement in your diet at a bedtime for 30 days. अब हम बात करें कि फूड सोर्सेस में ये कहाँ पे अवेलेबल है, स्लाइड पर सब मेंशन है. ठीक है. एंड इफ यू आर अ थायराइड पर्सन, अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हो तो कैल्शियम और विटामिन डी 4 आवर्स के बाद लेना है उसको. ठीक है. आपने थायराइड का मेडिसिन लिया, उसके बाद 4 घंटे का गैप मेंटेन करेंगे किसी भी तरह के सप्लीमेंटेशन को लेने के लिए. प्लस जब भी आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उसके बाद 40 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना. प्लीज मेक श्योर दिस. आफ्टर कोविड, many of the people come to the OPD with the complaint of low ferritin levels, low iron levels. Remember this: if you are feeling tired all the time, if you are feeling your hairs are flaky, your skin is getting dull, dark circles over the eye, and muscular pain at the calf region, B12 के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका आयरन भी कम है. बट उसके लिए सप्लीमेंटेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव अ मुट्ठी भर ऑफ पीनट्स और अ भुना चना along with a piece of jaggery, which is like 2.5 grams, just a peanut की टिक्की. After your lunch, and then move yourself for 10 minutes. Okay? Iron is better absorbed with the vitamin C. हर वेजिटेबल का एक सीजन के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड है. जैसे एग्जांपल, सर्दियों में संतरा है, विटामिन सी, चलते फिरते धूप में खड़े हुई है, एक संतरा खा लिया, वेल इनफ. अब स्प्रिंग का सीजन है तो भी आप इस चीज को आराम से खा सकते हो.
Salt, anxiety, high BP is the major cause because of the hidden salt. Salt से हमारा नमक से मतलब नहीं है. It also means cornflour, cornstarch, Ajinomoto, which is directly and indirectly present in your meals. Chutney, preservatives, namkeen, पापड़, अचार. एंड अभी आने वाले टाइम पे जब आप छाछ पियोगे, सैलेड खाओगे, तो आप उसमें हमेशा ऊपर से नमक स्प्रेड करते हो, चाट मसाला स्प्रेड करते हो. उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है. Many of us complain सुबह उठ के फेस पे एक पफीनेस है, एक स्वेलिंग है, हाथ पैरों में एडिमा है, एंकल के साइड पे आप फील करते हो एक सूजन सी बनी हुई है. जरूरी नहीं है कि ये रीनल कॉम्प्लिकेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है. ये भी एक इंडिकेशन है कि आप पानी कम पी रहे हो, नमक ज्यादा खा रहे हो, एंड बॉडी से उतना यूरिन फ्लश आउट टाइम पीरियड पे नहीं हो रहा है. तो इस चीज को चेकआउट करिए और अपने सॉल्ट इनटेक को बैलेंस आउट करिए. 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे. पानी का अगर बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेज पे है, आपको सबसे ज्यादा ऑन एंड ऑफ हेडेक होगा. हेडेक कहाँ पे होगा? इस जगह पे पेन करेगा, या फिर एकदम साइड इस जगह पे पेन करेगा. यहाँ से आपको इसके साथ साथ आपको आई लैशेस पे हैवीपन फील होगा, प्लस काफ मसल्स में रात को अच्छा अच्छा लगेगा कि कोई अगर दबा भी रहा है तो भी आपको दर्द हो रहा है. So these two first indication body gives when body moves towards the dehydration. आपको पानी पीना याद नहीं रह रहा, टाइम नहीं मिल रहा पीने का, मीटिंग्स है, सब कुछ है, कुछ भी हो, खाना खाने से 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए. 8 अगर आप 6 मील्स भी ले रहे हो, इस तरीके से भी आपके 12 गिलास अपने आप पूरे हो जाते हैं. Many times in the OPD, we have observed people say that we are taking 1 liter of water in the morning. 4 गिलास पानी सुबह उठते ही पी लेते हैं. No, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ मैंने पानी पी लिया, बट बॉडी को 1 गिलास पानी ही चाहिए उस टाइम पे. उसको उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है. पानी ठंडा है गर्म है वो आपकी टंग लेवल तक पता है, पेट को नहीं पता कि ठंडा है या गर्म. इट्स अप टू यू, आप कैसे भी पिए. Exercise. I understand due to the high level of workload or a family commitments, exercise के लिए 100% टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता. So somewhere somehow we have opted evening hours for the exercise and the gym. But the actual fact of doing the workout is before 4 p.m. That's why if you go back to the olden era, our dada, nana, or the older generation used to do exercise early in the morning, never in the evening, until and unless they are a sport person or athletes. So it is always recommended exercise, any kind of exercise, it should be in the morning hours or before 4 p.m. because your metabolism start declining as like the sunset. In the Ayurveda science, we always work on 3 kind of pitta. तो जैसे जैसे रात होती जाती है बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होने लग जाता है, इसलिए हम 8 to 8 का खाने का ब्रैकेट भी मेंटेन करते हैं और एक्सरसाइज पैटर्न को भी उसी चीज में मेंटेन करते हैं. तो थिंक ओवर इट, जितना रात में एक्सरसाइज करोगे उतना मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा, जितना मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करोगे उतना मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा. सेकेंड कैंसर, नहीं टाइम मिल रहा एक्सरसाइज का, नॉट टू वरी. लंच किया, आप अपने रूम पे ही 10 मिनट्स फोन पे बात करते करते वॉक कर लो. डिनर किया,
After 10 minutes, walk in the room itself or in the balcony. Breakfast किया, उसके बाद आई अंडरस्टैंड ऑफिस जाना नहीं पॉसिबल, बट लंच एंड डिनर के बाद आप कोशिश करके देखिए. It not only help in the digestion of the food, but also help in maintaining the spike of the sugar level which happens after 90 minutes. तो अगर आपकी खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर हाई आ रही है तो वो उसको कंट्रोल करेगा. And it is also good for PCOD and PCOS for controlling insulin resistance. Now, आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप कार्ब्स की बात करते हो, आपको सबसे पहला और इजी ऑप्शन क्या मिलता है? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पूरी, समोसा, पराठा, ब्रेड पकौड़ा, ready to drink juices or a cold pressed juices in your cafeteria. कैसे रिप्लेस करोगे? कैफेटेरिया में एक छोटा सा कॉलम होता है जहां पर साउथ इंडियन फूड भी मिलता है, मूसली भी मिलती है, दूध भी मिलता है. And somewhere somehow we have seen over the period of time they have salad brackets also and Indian breakfast, triple breakfast also. So opt for the breakfast which is rich in the one source of protein, equally blend with the carbs and equally blend with the vitamins. For example, घर पे हो, आपने पोहा बनाया, but 70% it should be vegetables, 30% poha, and 20% of steamed sprouts. So it's a blend and complete iron, calcium, protein dish. Similarly, if you are making paratha, एक खपली wheat करके आता है, which is a high source of protein and low source of glycemic index. So you can change your atta from normal MP sharbati atta to khapli wheat. Come to the proteins. हर मील में अगर आपने एक 80 ग्राम की दही, जो मदर डेयरी का पैकेट आता है, या एक कटोरी घर में जो होती है, उसको आपने ऐड कर दिया एक ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, आपके 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन वहां पर पूरे हो जाते हैं. अलोंग विद द लंच में आपने दाल कर दी, डिनर में आपने दाल कर दी. अब डिनर में आप कहते हो, हम बहुत से लोग कहते हैं कि हम दही नहीं खाएंगे, तो दही की जगह पे आपने अगर 4 से 5 पनीर के पीसेस या चिकन ऐड कर दिया या उबला अंडा ऐड कर दिया, आपका प्रोटीन का कंजम्पशन कहीं ना कहीं 12 ग्राम एक मील में आराम से पूरा होता है. फाइबर्स अगर बात करें, मिड मॉर्निंग में 11 बजे एक फ्रूट, along with 4 almonds, 2 walnuts, 5 gram of pumpkin seeds. Complete power pack meal instead of fruit juices and vegetable juices. Vegetable juices should be shipped to the soup, not as a juice. Fruit has a fruit. This is a slide which I have added for the solution. You can share. Thank you.